دوستو آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ایک سوال کے ساتھ جو کہ یہ ہے کہ if the Alexander is great and the Ashoka is great so why the Hitler is not great؟ کیونکہ دوستو دیکھا جائے تو ان تینوں کا خواب ایک ہی تھا، وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کو فتح کرنا، اور ان تینوں نے ہی اپنی زندگی میں بہت زیادہ جنگیں لڑی۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم الیگزینڈر کو گریٹ کہتے ہیں، اشوکا کو گریٹ کہتے ہیں اور ہٹلر کو ہم صحیح نہیں سمجھتے؟ دوستو اس سوال کے جواب کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ان تینوں کی زندگیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یونیک ٹی وی کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چلے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ دا الیگزینڈر گریٹ اور 90 BCE پرشین امپائر کے راجا ڈیریس نے گریس پر حملہ کر دیا۔ گریس کا کیپٹل ایتھنس، یہاں پر موجود ہزاروں مورتیاں اور بہت زیادہ مندر جو ان کے بنائے ہوئے تھے ان سب کو ختم کر دیا، اور آنے والی کئی صدیوں تک گریس کا بچہ بچہ پرشینز کے خلاف ہو گیا اور ان کے خون کا پیاسا بن گیا۔ 356 BCE میسیڈونیا، گریس کے اس چھوٹے سے قصبے میں ایک بچے نے جنم لیا اور کہا جاتا تھا کہ یہ بچہ دی سن آف گاڈ ہے، سکندر ہے۔ 334 BCE سکندر نے اس چھوٹے سے تنکے سے اپنی سلطنت کو قائم کیا، اپنے ملک کا بدلہ لیا اور پورے پرشین امپائر کو تباہ کر دیا، اور اب دنیا کا نقشہ کچھ ایسا دکھ رہا ہے۔ 326 BCE سکندر انڈیا کی سرحد پر کھڑا ہے اور اگلا نشانہ ہے انڈیا۔ وہ انڈیا کو جیت نہیں پاتا ہے اور اپنے ملک میسیڈونیا واپس چلا جاتا ہے۔ دوستو یہ سارے پہلو ہیں جو کہ آپس میں مل کر اور پھر دی الیگزینڈر کو راجاؤں کا راجا شہنشاہ بنائیں گے۔ دوستو الیگزینڈر کی پیدائش 356 BCE میں میسیڈونیا کے ایک شہر پیلا میں ہوئی۔ دوستو سکندر کے پیدا ہوتے ہی لوگ اسے دی سن آف گاڈ زیوس کہنے لگے، اور سکندر کی ماں اولمپیاس نے بھی لوگوں کا اس چیز میں بہت ساتھ دیا۔ دنیا کے سارے فادرز کی طرح الیگزینڈر کے فادر بھی جو کہ فلپ II تھے، الیگزینڈر کو ایک قابل اور سمجھدار اور کبھی نہ ہارنے والا راجہ بنانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اس وقت گریس میں موجود سب سے بیسٹ اسکالرز کی مدد سے فلپ II نے اپنے بیٹے الیگزینڈر کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوائی۔ انہی فلسفرز میں دنیا کے مشہور فلسفر ایرسٹوٹل کا نام بھی شامل ہے، جنہوں نے صرف 3 سال کے اندر ہی الیگزینڈر کے اندر صبر اور بہت سی ایسے گن پیدا کیے جو کہ اس کے آگے زندگی میں کام آئے اور یہ ایک اچھا راجہ بن سکے۔ اور دوستو اس کی پہلی جھلک میسیڈونیا کے لوگوں کو دیکھنے کو ملی جب الیگزینڈر دی گریٹ نے صرف 10 سال کی عمر میں ہی ایک گھوڑے کو جس کا نام بیسیفیلس تھا، جو کہ ایک بے قابو گھوڑا تھا، بڑی آسانی سے ٹرین کر لیا۔ اس کے بعد صرف 18 سال کی عمر میں ہی الیگزینڈر نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بیٹل آف چیروینیا میں حصہ لے لیا، جہاں انہوں نے اپنے مقابلے میں تھیبنس اور ایتھنس کی فوجوں سے جنگ کی اور انہیں ہرایا، اور یہ الیگزینڈر کے سفر کی شروعات تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ جب الیگزینڈر نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کا اس کے اوپر یقین اور بڑھ گیا کہ وہ دی سن آف گاڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑھتا گیا الیگزینڈر کا جنون اور پرشین امپائرز کے خلاف نفرت۔ وہی پرشین امپائر جس کو مٹانے کا سپنا گریس میں موجود ہر بچے نے اور اس کے پتا نے دیکھا تھا، اسی سپنے کو پورا کرنے کے لیے الیگزینڈر دی گریٹ گریس میں موجود سبھی شہروں پر حکومت کرنے لگا۔ دوستو اسی دوران الیگزینڈر نے کئی شہروں کی آرمی، وہاں کے نوبلز، کمانڈرز سبھی کو میسیڈونین آرمی کے ساتھ ملاتے ہوئے اپنے ساتھ کر لیا تاکہ مصیبت کے وقت سبھی کی وفاداری سکندر کے لیے ہو۔ گریس کے سبھی شہروں کو جیتنے کے بعد سکندر پرشیا کی طرف بڑھنے لگا، اور اسی دوران اس کا سامنا ہوا پرشیا کی پہلی آرمی سے، ایک ایسی آرمی جو کہ سائز میں سکندر کی آرمی سے ڈبل تھی، لیکن اس کے باوجود سکندر یہ جنگ جیت گیا صرف اپنی عقل مندی اور ہمت کے دم پر، اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی سکندر کے لیے کہ اپنے سے ڈبل آرمی کو بھی سکندر نے ہرا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جیت سکندر کی کہانیوں میں بیٹل آف گرنیس کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں الیگزینڈر کو پرشین آرمی کی طاقت کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھنے کو ملی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی فوج اور اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ اتنی بڑی آرمی ہونے کے باوجود اپنی جنگ کی منصوبہ بندی کے بلبوتے پر اس جنگ کو جیتا۔ اس جنگ کے بعد الیگزینڈر نے ایشیا مائنرز کے کئی حصوں کو اپنے
قبضے میں لے لیا. جہاں وہ نہیں پہنچ پایا تھا ان شہروں نے خود ہی اپنے آپ کو الیگزینڈر کے سامنے سرنڈر کر لیا. پر پرشیا کے ایک حصے کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد بھی اس نے وہاں کے کلچر کو ختم نہیں کیا, بلکہ اس نے وہاں پر موجود سبھی لیڈرز کو, کمانڈرز کو ان کی ایمانداری کے بدلے اپنی مرضی کے مطابق رہنے کی آزادی دی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایرسٹوٹل کی بنا زبردستی کیے دل جیتنے والی اپناتے ہوئے الیگزینڈر کئی سارے لوگوں کا دل جیت چکا تھا. اور دوستو یہ بہت امپریسو بات ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد بھی الیگزینڈر نے لوگوں کے دل میں جگہ بنا لی اور پرشین امپائر کے کئی حصوں کو میسیڈونیا میں ملا دیا. پر دوستو کہتے ہیں نا کہ شیر کی پیاس پانی سے نہیں بجھ سکتی, اور الیگزینڈر کا مقصد تو شروع سے ہی پرشین آرمی کو تباہ کرنا تھا, اور اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی آرمی کے ساتھ پرشین آرمی کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہا تھا, جہاں اس کا سامنا اب تک کی سب سے بڑی پرشین آرمی کے ساتھ ہوا. اور دوستو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے امپائر کو اتنا بڑھانے کے بعد بھی یہ پرشین آرمی الیگزینڈر کی آرمی سے بہت بڑی تھی. الیگزینڈر کی فوج میں تھے صرف 47,000 سولجرز, اور وہی پرشین آرمی میں 1,00,000 سے بھی زیادہ سولجرز. لیکن پرشیا کے راجا ڈیریس III الیگزینڈر کی سازشوں کو اچھے طریقے سے جانتے تھے, اس لیے انہوں نے سکندر کے خلاف جنگ میں اپنے لوگوں کو زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی فل ایکٹیو ہو کر جنگ لڑنے کا سجیشن دیا. حالانکہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی ڈیریس اپنی فوج کو الیگزینڈر سے نہیں بچا پائے گا. ان دونوں آرمیز کے درمیان گوگو میلا میں جنگ شروع ہوئی تو الیگزینڈر نے اپنی سمجھداری کا استعمال کرتے ہوئے پرشین فوج کو اپنے اوپر حملہ کرنے دیا تاکہ گریک آرمی پیچھے ہٹ جائے, اور گریک آرمی کے پیچھے ہٹتے ہی اور پرشین آرمی جیتنے کی کوشش میں آگے آئے, اور وہیں بیچ میں بنے گیپ سے الیگزینڈر نے اپنی آرمی کو گزارا اور اپنے بہادر سولجرز کے ساتھ وہاں تباہی مچا دی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈرا سہما ڈیریس جب وہاں سے بھاگنے لگا تب اس کے ہی کمانڈر نے اس کو مار دیا. یہ جنگ ایسی جنگ تھی جس نے الیگزینڈر کی قسمت کی کایا ہی پلٹ دی, کیونکہ دوستو اس جنگ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا امپائر ختم ہو گیا تھا, اور الیگزینڈر دی گریٹ صرف 25 سال کی عمر میں ہی ایشیا کا ماسٹر بن چکا تھا. اتنا ہی نہیں, اب ان کی حکومت صرف میسیڈونیا تک نہیں رہ گئی تھی, وہ اب افغانستان تک پہنچ چکا تھا. پر دوستو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف 2 جنگیں ہی الیگزینڈر کو گریٹ بناتی ہیں؟ کیونکہ دوستو ہمارا مین سوال تو یہی ہے کہ الیگزینڈر گریٹ ہے. تو دوستو نہیں, کیونکہ گوگو میلا میں ملی جیت کے بعد الیگزینڈر نے سبھی کمانڈرز اور گورنرز کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن بنا لیے تھے, اور عام لوگوں کا دل جیت کر اور ان سے گریٹ ریلیشن بنانے کی ہر ممکن کوشش کی. اس نے پرشیا میں گریک کلچر, ریلیجن یا کوئی قانون کچھ بھی زبردستی لاگو نہیں کیا, الٹا وہ خود ان کے ایونٹس وغیرہ منانے لگا. دوستو اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے کسی کو بھی, کسی گورنر کو اس کی پوزیشن سے نہیں ہٹایا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے دشمن ڈیریس کی بیٹی سے شادی بھی کر لی, جس کے بدلے میں ایرسٹوٹل کی سیکھ کے مطابق اسے لوگوں کا پیار اور ہمدردی ملی. الیگزینڈر ایک بہت سمجھدار انسان تھا, وہ جانتا تھا کہ جب تک لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ ملے وہ اس کو اپنا راجا نہیں مانیں گے. اس لیے جنگ کے بعد جب پرشیا کی تجوریاں کھولی گئیں تو اس کا جتنا بھی مال تھا اس کو کچھ حصوں میں بانٹ لیا گیا. اس سے نہ صرف الیگزینڈر کی واہ واہ ہوئی بلکہ پورے ملک کے اندر بزنس بھی بڑھا. لیکن دوستو جیت کے راستے میں پیٹ میں خنجر کچھ اپنے ہی مارتے ہیں. یہ بات صرف کتابی نہیں ہے. ان منصوبوں سے الیگزینڈر نے چاہے پرشیا کے کمانڈرز اور ان کے لوگوں کو خوش کر دیا, لیکن اس وجہ سے اس کے اپنے کمانڈرز ہی اس سے ناراض تھے اور وہ سبھی مل کر الیگزینڈر کے خلاف ہی سازشیں کرنے لگے. لیکن دوستو الیگزینڈر بھی کوئی معمولی نہیں تھا, وہ اپنی سیکیورٹی کو لے کر بہت ہی ایکٹیو تھا کہ جیسے ہی انہیں اپنے خلاف ہو رہی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اس شخص کو قتل کر دیا. اور دوستو یہ بات الگ ہے کہ جیت کا نشہ انسان کو کسی بھی حالت میں رکنے نہیں دیتا, اور اسی نشے کی لت الیگزینڈر کو بھی لگ چکی تھی. ابھی تو اپنے لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بھی وہ رکے نہیں. ان کی نظر ایسٹرن بارڈر کے پاس انڈین کانٹیننٹ پر پڑی, جس کی وجہ تھی انڈیا کی نیچرل ورتھ.
इंडिया की इसी वेल्थ पर कब्जा करने के लिए अलेक्जेंडर की फौज खाइबर पास को पास करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंच गई, जहां पर उनका सामना हुआ पौरवा राज्य से। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, जो कि आज का पाकिस्तान है, वहां के राजा पोरस जो कि किसी भी कीमत पर अलेक्जेंडर को इंडिया में दाखिल होने नहीं दे सकते थे और ना वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर यहाँ आए। इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो गई। दोस्तों ये जंग अलेक्जेंडर के लिए अब तक की सबसे खतरनाक और मुश्किल तरीन जंग थी और सबसे लंबी जंग थी, जहां दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे राजाओं ने अलेक्जेंडर के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, वहीं पोरस इतने महीनों जंग लड़ने के बाद भी हार नहीं मान रहा था। इवन के इतनी ज्यादा जंग के बाद भी राजा जो थे वो बहुत बहादुरी के साथ अलेक्जेंडर का सामना कर रहे थे और इसी बात ने अलेक्जेंडर को बहुत खुश किया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर खुद राज करने दिया, बल्कि इनाम के तौर पर उसे कुछ और राज्य भी दे दी। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जिस राजा को पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं पाया, उसकी मौत सिर्फ 32 साल की छोटी सी उम्र में ही हो गई। लेकिन मरने के बाद भी उनका जिस्म हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मरने के 6 दिन बाद भी उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हो रही थी। दरअसल जून 323 BCE में बेबीलोन पहुंचे थे, जहां 10 दिन के बुखार के बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद जब उन्हें दफनाया गया तो 6 दिन बाद भी उनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई। यहाँ पर अगर हम मॉडर्न डॉक्टर्स की माने तो ये हो सकता है कि अलेक्जेंडर को स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से उनके जिस्म में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई होगी और उनके आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई होगी और उनका सांस लेना तकरीबन ना के बराबर हो गया होगा। और इसी तरह तब के जो डॉक्टर्स थे वो दिल की धड़कन की बजाय सांस को चेक करते थे, तो ये हो सकता है कि उन्होंने वक्त से पहले ही अलेक्जेंडर को मुर्दा करार दे दिया हो। इसका मतलब है कि अलेक्जेंडर अगर कुछ साल और जी लेते तो उनकी हुकूमत ना जाने पूरी दुनिया में कहां होती। चाहे कम उम्र में मर जाने की वजह से अलेक्जेंडर पूरी दुनिया में राज ना कर सके हों। दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हीं की वजह से ग्रीक संस्कृति की झलक आज भी नजर आती है। यही नहीं, उनकी मौत के बाद चाहे उनकी हुकूमत खत्म हो गई हो, अगले 200 साल तक इंडो ग्रीक किंगडम के जरिए ग्रीक इन्फ्लुएंस बरकरार रहा। इसे हेलेनिस्टिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से ग्रीक लैंग्वेज भी मैसेडोनिया से 22,000 माइल का सफर करते हुए इंडिया तक पहुंच गई। साथ साथ ही इंडिया पर किए हमले के बाद ही सेंट्रल एशिया और वेस्ट के दरमियान ट्रेडिंग शुरू हुई। और इसके अलावा दोस्तों आज दुनिया में कम से कम 50 सिटीज अलेक्जेंडर के नाम पर हैं और इनमें से कई सिटीज को खुद अलेक्जेंडर ने बनाया था, जहां आज लाखों में लोग रहते हैं। और सिर्फ सिटीज ही नहीं बल्कि जाते जाते अलेक्जेंडर ने लोगों को अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स भी दी, जिसे आज कई मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया भी जाता है। अगर हिस्टोरिकल्स की माने तो अलेक्जेंडर उन लोगों में से हैं जिनका जिक्र सैकड़ों जुबानों और कल्चर्स में किया गया है, जैसे कि पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत etc। इसके अलावा एक मशहूर जो डायलॉग है, जो जीता वो सिकंदर, इसमें भी सिकंदर कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है। और दोस्तों ये थी सिकंदर की जिंदगी, जिसको हमने पूरी कोशिश की है कि शॉर्ट करके आपको समझाया जा सके। एडोल्फ हिटलर के बारे में, एक ऐसा इंसान जिसे आज के जमाने में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई हैं। दोस्तों यही वो इंसान था जिसकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। दोस्तों हिटलर के नाम का डर सिर्फ जर्मनी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में था। पूरी दुनिया उसके नाम से डरती थी। लेकिन दोस्तों आज के जमाने में जिस हिटलर को पूरी दुनिया नफरत करती है, वो अपने जमाने में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। उसकी स्पीच में इतनी ताकत हुआ करती थी कि वो आसानी से लोगों को अपनी तरफ कर लेता था और यही वजह बनी वो इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में भी कामयाब हो गया। एक वक्त तक पास्टर बनने की चाह रखने वाला एक बच्चा कैसे बड़ा होकर इतना जालिम बना, चले समझते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 को। ऑस्ट्रेलिया के ब्रामो एमीन नाम की जगह पर हिटलर पैदा हुआ। इनके फादर का नाम एलोइस हिटलर और माँ का नाम क्लारा पोल्जल था। और दोस्तों हिटलर की माँ क्लारा एलोइस हिटलर की तीसरी
इकलौती बीवी थी और हिटलर अपनी माँ की चौथी औलाद थी। लेकिन दोस्तों इससे पहले हिटलर के भाई बहनों की किसी न किसी वजह से मौत वाक़या हो जाती है। अब जबकि हिटलर इकलौता बेटा था अपनी माँ का, इस वजह से हिटलर को अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार मिला। दोस्तों शुरू में हिटलर के साथ बहुत बुरा होता रहा। जॉब के लिए और खाने के लिए उसके पेरेंट्स को मुख्तलिफ शहरों में घूमना पड़ता था और हिटलर का अपने बाप के साथ कोई अच्छा बॉन्ड नहीं था। हिटलर ने अपनी बुनियादी तालीम वॉर्कुचल स्कूल से हासिल की और बचपन में हिटलर बहुत ही मजहबी था। उन्हें चर्च के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट इवेंट्स के अंदर हिस्सा लेने का बहुत शौक था और इसी वजह से वो आगे चलकर एक पास्टर बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही अपने मुल्क जर्मनी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और इसीलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया में रहकर जर्मनी का साथ देते थे। और 1903 में हिटलर के फादर की डेथ हो जाती है और अगले कुछ ही सालों में उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। दोस्तों अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा था, वो एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो चुके थे। अब पेट पालने के लिए हिटलर ने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग भी बनाई और कुछ पोस्ट कार्ड बेचकर भी अपना गुजारा किया। और कुछ लोग कहते हैं कि ये वही वक्त था कि जब हिटलर के अंदर यहूदियों के लिए नफरत पैदा हुई। 1913 में हिटलर जर्मनी के एक शहर म्यूनिच में शिफ्ट हो गए और वहां पर उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया और फिर 1914 में उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब जबकि हिटलर को जर्मनी वैसे ही बहुत पसंद था, इस वजह से हिटलर ने बहुत सी जंगों में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ और इसके लिए उन्होंने जर्मनी के पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर 1919 में हिटलर ने DAP नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी और इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह खिलाफ थे। और दोस्तों कहते हैं हिटलर की जो यहूदियों के साथ नफरत थी वो DAP ज्वाइन करने के बाद और ज्यादा इनहेंस हो गई। आगे चलकर DA पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया और हिटलर बहुत ही कम वक्त में यहूदियों के खिलाफ स्पीचेस देकर लोगों को पसंद आने लग गए। उस वक्त पर जर्मनी की स्टॉक मार्केट भी कुछ खास नहीं थी और उसको सही करने की बातें कर कर हिटलर लोगों में बहुत मशहूर हो रहे थे। उनके इस मशहूर होने को देखते हुए 1921 में उन्हें नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिसे कोई भी नहीं जानता था अब लोग उसे जानते थे। 1923 में हिटलर ने उस वक्त की हुकूमत को गिराने की भी कोशिश की, लेकिन दोस्तों हिटलर इस काम में कामयाब ना हो सका और 1924 में एक इल्जाम में हिटलर को 5 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि सिर्फ 13 महीने ही उन्हें जेल में रहना पड़ा और वहां उन्होंने मेन कैफ नाम से एक किताब भी लिखी। हिटलर के जेल से निकलने के बाद स्टॉक मार्केट थोड़ी बेहतर हो चुकी थी जर्मनी की। इस वजह से हिटलर को अब ऐसा कुछ करना था कि जिसके वजह से हिटलर लोगों की नजरों में दोबारा वापिस आ सके और ये मौका मिला उन्हें 1929 में जब जर्मन स्टॉक मार्केट बुरी तरह नीचे आ चुका था। लाखों लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे बैंक्स भी बंद हो गए। अब हिटलर इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने का वादा करके लोगों की नजरों में एक बार फिर से आ चुका था। हिटलर अब जिस सियासी जगह की कोशिश कर रहा था वो इसको मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा लेकिन एक बार फिर से हिटलर हार गया। लेकिन दोस्तों 1933 में वो जर्मन के चांसलर का इलेक्शन जीत गया। तो दोस्तों जैसे ही ताकत उसके हाथ आई तो उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। आगे चलकर प्रेसिडेंट की मौत के बाद उसने खुद को प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन किया और उसके बाद जो यहूदियों की मौतें शुरू हुई उसने सबको हिलाकर रख दिया। प्रेसिडेंट बनने के बाद हिटलर ने अपनी आर्मी की ताकत को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिए और दोस्तों 1939 तक हिटलर ने अपने नेबर कंट्रीज पर हमला शुरू कर दिया और इस
इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है और इसके बाद कम से कम 61 मुल्कों ने इसके अंदर हिस्सा लिया और दोस्तों कहा जाता है इसमें करोड़ों लोगों की जान गई। शुरू में हिटलर की नाजी आर्मी को तो जीत मिली, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी ताकत कम होने लगी और हिटलर को भी शायद इस बात का एहसास होने लगा था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा ब्राउन नाम की एक लड़की के साथ तीसरी शादी की और शादी के अगले दिन ही हिटलर अपनी हार को महसूस कर चुका था। दूसरी कंट्रीज की आर्मीज उसके बहुत ही पास पहुंच चुकी थी, इसलिए हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उनकी तीसरी बीवी ने भी अपनी जान दे दी। और दोस्तों हिटलर की मौत के बाद से ही दूसरा जो वर्ल्ड वॉर था वो भी खत्म हो गया। और दोस्तों कहते हैं कि आदमी अपने कर्म से पहचाना जाता है और हिटलर के कर्मों को देखते हुए दुनिया उसे सबसे बुरा इंसान मानती है उस सदी का। अशोक द ग्रेट, अशोक के आजम जिसे अशोका या अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है, मौर्य सल्तनत के एक मशहूर और काबिल एहतराम शहंशाह थे। दोस्तों अशोक की पैदाइश 306 कबले मसीह में पाटलिपुत्र जो के मौजूदा पटना है जो कि इंडिया में मौजूद है में हुई। ये मौर्य सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसारा के बेटे थे। दोस्तों अशोक का दौर 268 से 232 कबले मसीह तक रहा। दोस्तों इसकी हुक्मरानी का दौर हिंदुस्तान की तारीख में एक संगे मेर की हैसियत रखता है। खास तौर पर इसका बुद्ध मत कबूल करने और इसकी तालीमात को फरोग देने में सबसे बड़ा हाथ था। दोस्तों अशोक की जिंदगी के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बात वाज़ेह है कि वो अपनी जवानी में ही अपनी अक्लमंदी और अपनी जंग में की जाने वाली मंसूबाबंदी की वजह से बहुत मशहूर थे। इस वजह से इनकी जवानी में ही इन्हें बहुत सी जंगों में फतह मिली। इसी से दोस्तों लोगों को इनकी काबिलियत का पता चला। अशोक के वालिद बिंदुसारा की मौत के बाद मौर्य सल्तनत में जानशीरी के लिए शदीद लड़ाइयाँ हुई, जिसमें अशोक ने अपनी जंगी सलाहियतें और सियासत की बिना पर हुकूमत कायम की। दोस्तों अशोक ने हुकूमत संभालने के बाद कई जंगें लड़ी ताकि इसकी हुकूमत को और मजबूत बनाया जा सके। इसकी सबसे मशहूर जंग कलिंगा की जंग थी जो कि 261 कबले मसीह में लड़ी गई। ये जंग मौर्य सल्तनत को फैलाने का एक हिस्सा थी और यही जंग अशोक की हुकूमत को फैलाने का एक अहम हिस्सा बनी। कलिंगा की जंग निहायत खूनी साबित हुई और लाखों लोग इसमें मरे। कलिंगा की जंग के बाद अशोक ने जंग की सूरत हाल को देखकर अंदरूनी तौर पर एक बहुत बड़ी तब्दीली महसूस की। इसने इंसानी जानों का ज़िया और बहुत ज्यादा नुकसान को देखते हुए बुद्ध मत कबूल करने का फैसला किया। दोस्तों बुद्ध मत की तालीमात ने अशोक की जिंदगी को पूरी तौर पर बदल कर रख दिया। इसने मजहबी तालीमात को अपनाना शुरू कर दिया और अपनी बाकी जो जिंदगी थी जिसमें इसने हुकूमत की उसमें बुद्ध मत के असूलों के मुताबिक ही अपनी जिंदगी गुजारी। बुद्ध मत कबूल करने के बाद अशोक ने बुद्ध मत की तालीमात को अपनी सारी सल्तनत में फैलाया। इसके अलावा दोस्तों इसने बुद्ध मत की तालीमात पर अमल करते हुए कई इस्लाहात भी की और इसके अलावा इसने अपने मुल्क की तरक्की के लिए बहुत से कदम भी उठाए, जैसे कि सड़कों की तमीर, पानी की फराहमी, दरख्त लगाना और हॉस्पिटल्स को बनाना वगैरह शामिल हैं। और इसने बुद्ध मत के माहिरीन को दुनिया भर में भेजा ताकि बुद्ध मत को फैलाया जा सके। इसने श्रीलंका, जनूब मशरकी एशिया और वस्तनी एशिया में बुद्ध मत के माहिरीन को भेजा। दोस्तों अशोक ने अपनी सल्तनत में मुख्तलिफ पहाड़ों पर और मुख्तलिफ पत्थरों पर अपने फरमान लिखवाए जो कि अशोक के फरमान के नाम से मशहूर हैं। इन फरामीन में अशोक ने इखलाकियात, हुकूमती पॉलिसीज और गुर्बत के असूलों पर जोर दिया। इनका मकसद अवाम को इखलाकी और रूहानी तालीमात से रूबरू करवाना था। अशोक के फरमान आज भी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं और इनसे इसके दौरे हुकूमत की झलक मिलती है। ये फरमान मुख्तलिफ जबानों में लिखे गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें समझ सके। अशोक की दाखिली पॉलिसी का मकसद अवाम की तरक्की की राह को गामजन करना था। इसने ज़राअत को फरोग दिया, नए शहर और सड़कें तामीर करवाई और अवाम के लिए पानी की फराहमी के इकदामात किए। इसके अलावा इन्होंने किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए बहुत से काम किए और इनके लिए कर्जों की फराहमी को और भी आसान बनाया। और अशोक ने सेहत के मामले में भी बहुत बड़े काम किए और इंसान
इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी तिब्बी मकामात कायम किए और इसने दूसरे मुल्कों के साथ बहुत सारे दोस्ताना मामलात भी कायम किए और ये अपने सफीर भी दूसरे ममालिक में भेजा करते थे, जिसकी वजह से इसके दौरे हुकूमत में मौर्य सल्तनत की दूसरे ममालिक के साथ भी तिजारत हुई। और इसके अलावा बुद्ध मत को दुनिया में इतना फैलाया जो है उसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार जो है वो अशोक का ही माना जाता है। और दोस्तों, अशोक की मौत के बाद मौर्य सल्तनत जो है वो बहुत कमजोर होना शुरू हो गई, लेकिन दोस्तों अशोक का विरसा और इसकी तालीमात हमेशा याद रखी जाएंगी। इसके अलावा अशोका ने मौर्य सल्तनत को अरूज पर पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा जंगें भी लड़ी, लेकिन कलिंगा की जंग के बाद इसकी जिंदगी में होने वाली तब्दीली ने इसे एक अजीम रहनुमा बना दिया। इसके अलावा जो अशोक ने बुद्ध मत के लिए किया उसकी वजह से अशोक को दुनिया भर में बहुत रिस्पेक्टिव नजरों से देखा जाता है। और अशोक की जो जिंदगी थी वो अब के इंसानों को एक पुरसुकून और अमन के माहौल में रहने की रहनुमाई करती है। और दोस्तों, इसकी हुकूमत में फन को और तामीरात को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी और इसने बुद्ध मत की फरोग के लिए स्तूपा, मंदिर और खानताहें तमीर करवाई। और दोस्तों, अशोक का सबसे मशहूर तामीराती कारनामा सारनाथ में धर्मिका स्तूपा है, जो कि बुद्ध मत की मुकद्दस तरीन जगहों में से एक है। इसके अलावा अशोक ने कई मुख्तलिफ शहरों में सतून नस्ब करवाए जिन पर अशोक ने अपने अल्फाज लिखवाए और ये आज भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों, अशोक की जाती जिंदगी के बारे में भी कई दिलचस्प बातें हैं। इसकी बहुत सी बीवियां और बच्चे थे। इसकी पहली बीवी वदिशा की शहजादी थी। इससे अशोक के 2 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से एक का नाम महेंद्र संगमेद्रा पैदा हुई। अशोक के साथ साथ इसके बच्चों ने भी बुद्ध मत को फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किए थे। और दोस्तों, अशोक के बुद्ध मत कबूल करने से अशोक ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि दूसरे लोगों को भी उनके मजहब से हटाकर जबरदस्ती बुद्ध मत को कबूल करने के लिए कहा हो। उसने अपने फरमान में कहा कि तमाम मजहब का एहतराम करना जरूरी है। अशोक ने इस बात पर जोर दिया कि हर मजहब की अच्छी बातों को अपनाकर इंसानियत को फरोग देना बेहतर है। अशोक ने अपनी हुकूमत में अपनी सल्तनत को मुख्तलिफ सूबों में बांट दिया और हर सूबे का एक अलग सरबराह मुकर्रर किया। अशोक के मरने के बाद इसके बेटे ने बहुत ज्यादा कोशिश की अपने बाप की तरह बनने की, लेकिन अशोक की तरह उसका बेटा इतनी ज्यादा सलाहियतों से मालामाल नहीं था। और अशोक की वफात के तकरीबन 50 साल बाद ही मौर्य सल्तनत का खात्मा हो गया। दोस्तों, ये थी अशोक की जिंदगी। हमने पूरी कोशिश की कि शॉर्टली इसको एक्सप्लेन किया जाए। और दोस्तों, अब वक्त है हमारे सवाल की तरफ जाने का, जो कि हमने इस वीडियो में पूछा था। इफ अलेक्जेंडर इज ग्रेट एंड इफ अशोका इज ग्रेट, सो व्हाई द हिटलर इज नॉट ग्रेट। क्योंकि दोस्तों, देखा जाए तो तीनों का मकसद एक ही था, पूरी दुनिया को फतह करना। लेकिन दोस्तों, तीनों की जिंदगियों को सामने रखकर देखा जाए तो हमें पता चलता है तीनों का मकसद तो एक था, लेकिन इन तीनों का इस मकसद को अचीव करने का जो प्रोसेस था वो फर्क था। जैसे कि दोस्तों, हमने सबसे पहले देखा अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। अलेक्जेंडर ने बहुत सी जंगें लड़ी, लेकिन जंगों के साथ वो जिस मुल्क को या जिस सल्तनत को वो फतह करता था वो वहाँ के कमांडर्स को उनकी जगह से नहीं हटाता था और वहाँ पे रहने वाले लोगों को उनके मजहब की आज़ादी भी मौजूद थी और उनके इवेंट्स मनाने की भी उन्हें इजाजत थी। बल्कि हमने देखा कि अशोक जो है वो खुद भी कभी ना कभी उनके इवेंट्स में शामिल हुआ करता था। और ऐसे ही हमने देखा अशोक के बारे में कि जब से उसने बुद्ध मत को अपनाया उसकी जिंदगी जो है वो पूरी तरह तब्दील हो गई और उसने इखलाकियात को फैलाया और लोगों की बहुत ज्यादा मदद की और दुनिया को और इंसानियत को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत से इक़दामात किए। और हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे कि इन्होंने जंगें भी लड़ी, अशोक ने भी जंगें लड़ी और अलेक्जेंडर ने भी जंगें लड़ी, लेकिन उनके जंगों लड़ने के बाद भी उनकी कुछ अच्छी बातें भी लोगों के दरमियान आज भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से उनको आज के दौर में ग्रेट कहा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए एडोल्फ हिटलर के बारे में, तो उसकी लाइफ स्टोरी में हमें बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिलता कि लोगों को आज़ादी दी जाए। हमने ये तो देखा है कि वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था और वो अपने मुल्क से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन दोस्तों जो उसका तरीका था वो गलत था। उसने बहुत से लोगों को बेफजूल मारा और बहुत सी वर्ल्ड वॉर जो 2 थी उसमें अपना एक बहुत अहम किरदार अदा किया और इसके अलावा यहूदियों को तकरीबन खत्म कर ही दिया था। बस कुछ यहूदी जो थे वो बच
बच गए। और वो जानता था कि वो गलत है, इसलिए जब उसे पता चला कि अब जो मेरी हुकूमत है वो कमजोर है और मैं किसी भी वक्त हार सकता हूँ या मारा जा सकता हूँ, तो उसने अपने आप को और अपनी बीवी को खुद ही कत्ल कर लिया। और वो वर्ल्ड वॉर 3 का जिम्मेदार था। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इसका मकसद दुनिया को फतह करना ही था, जैसे अशोक का और अलेक्जेंडर का था, लेकिन लोगों की सोच इसके बारे में फर्क है। आई होप आपको ये जवाब सेटिस्फाई लगा हो। अगर आपको इस जवाब में कोई भी डाउट हो या आप अपनी कोई बात रखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।